Hello students, hope you all doing well. I Dinesh Rawat, your faculty for the subject Financial Markets and Institutions. And today the topic is secondary market. So previous lecture में हमने discuss करा था about the primary market, and this is a part of capital market, that is one of the form of financial market. So capital market में primary market and secondary. Primary market we have discussed in the previous lecture, so now we will discuss secondary market. So let's start. So these are the references from where the PPT content has been made. So as you can see, these are the books. Now we would start with the definition. So basically प्राइमरी मार्केट जैसे हमने डिस्कस करा था, प्राइमरी मार्केट में जो कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड नहीं है अभी तक किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, सो जो अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं, अगर वो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू करती हैं, सो वो हेल्प लेती हैं प्राइमरी मार्केट की. सो प्राइमरी मार्केट में अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है to general public. So that is your primary market. And secondary market में, as you can see, already to listed companies होती हैं. So you can see the definition. The secondary capital market deals with those securities that are already issued. So जो primary market में securities, shares जो पहले से issue कर चुकी है company in an initial public offering. IPO is one of the form of public issue जो हमने प्राइमरी मार्केट में पढ़ा था. सो ऑलरेडी इशूड हैं जो सिक्योरिटीज आईपीओ में जो इशू हो चुकी थी इन द प्राइमरी मार्केट. सो कैपिटल मार्केट डील्स विद सच सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी इशूड टू द जनरल पब्लिक इन एन आईपीओ. So typically secondary market are those where previously issued securities are purchased and sold. So जो सिक्योरिटीज जो शेयर्स पहले से इशू हो चुके हैं उनको अगर हम फिर से अब परचेज एंड सेल करना चाहता है कोई भी इन्वेस्टर, सो दैट इज डन इन सेकेंडरी मार्केट. सो इन द सेकेंडरी मार्केट द सिक्योरिटीज आर जनरली सोल्ड buy and transferred from one investor to other. So that is one one would buy the security and other would sell the security. So hence the secondary capital market needs to be highly liquid in nature. Yes, so it has to be very highly liquid in nature. The secondary market refers to market where securities are traded after being initially offered to public in the primary market. So securities which are already issued to the general public in an IPO, they are traded in secondary market. So now रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट. सो जैसे हमने प्राइमरी मार्केट का रोल था जिसमें कंपनीज रिसोर्सेज रेज करती है, वैसे ही सेकेंडरी मार्केट में फॉर द जनरल इन्वेस्टर, जो हम जैसे जनरल इन्वेस्टर हैं, द सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ हिज सिक्योरिटीज. सो इट विल प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं सिक्योरिटीज को. And for management of the company, secondary markets serve as monitoring and control conduct by facilitating value enhancing control activities, enabling implementation of incentive based management contracts, and aggregating information, that is price discovery. So अगर उनको कोई information चाहिए that guides the management decision. Let's suppose if they see yes कि उनके shares की ज़्यादा demand है, so they would get an information, yes, investor are investing money and they can go ahead with any further decision. So these are some of the role. General public के लिए they provide a trading platform, or for management of the company it would give them information which would guide their management decision. Now we come to an important term. जो जब भी हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, सो स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. दीज आर द मेजर टू नेशनल एक्सचेंज इन इंडिया. सो एज पर SCRA एक्ट, stock exchange are any body of individuals, whether incorporated or not,
constituted for the purpose of assisting, regulating and controlling the business of buying, selling and dealing in securities. So सिक्योरिटीज में जब भी आप बाय एंड सेल करते हैं, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है जो उसके इन सारी एक्टिविटीज को असिस्ट करेगी, असिस्ट इन द सेंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, रेगुलेट करेगी कि एज पर रूल्स होने चाहिए सब कुछ, एंड कंट्रोल करेगी. सो उस बॉडी को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज. सो स्टॉक एक्सचेंज कुड बी रीजनल स्टॉक एक्सचेंज एंड इट कुड बी नेशनल एक्सचेंज. National में we have Bombay Stock Exchange and we have National Stock Exchange, NSE, BSE and NSE. Now what is the role of stock exchange? Stock exchanges in India under the overall supervision of regulatory authority, that is SEBI, Security Exchange Board of India. इसके अंडर stock exchange काम करते हैं and what they do, they provide a trading platform where buyers and sellers can meet to transact in securities. So initially क्या होता था, अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं था, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं होता था, तो बायर्स एंड सेलर्स को फिजिकली मीट करना पड़ता था. लेकिन नाउ ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दे प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. उसके बारे में हम पढ़ेंगे. So the trading platform provided by NSE, National Stock Exchange, BSE, Bombay Stock Exchange, is an electronic one. So there is no need for buyers and sellers to meet at a physical location to trade. They can trade through the computerized trading screen available with NSE and BSE trading members. So now you see the term trading members. सो NSE, BSE के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको हम ब्रोकर्स भी कहते हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं. दीज ब्रोकर्स प्रोवाइड इन्वेस्टर्स अ ट्रेडिंग स्क्रीन, दैट इज अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग फैसिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं ये ट्रेडिंग मेंबर्स. सो हमने देखा सेबी, दैट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. इन स्टॉक एक्सचेंजेस का काम होता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना फॉर इन्वेस्टर्स सो दैट दे कैन ट्रेड इन द सिक्योरिटीज. सो इनिशियली जैसे हमने डिस्कस करा था, ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था. दैट मींस द ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया यूज्ड टू टेक प्लेस थ्रू ओपन आउटक्राई without use of information technology for immediate matching and recording of trades. So जब physically buyer and seller meet करते थे and there was an open outcry system जिसमें price fix किया जाता था, लेकिन this was very time consuming and inefficient. This imposed limits on trading volumes and efficiency. In order to provide efficiency, liquidity and transparency, NSE, that is National Stock Exchange, introduced a nationwide online fully automated screen-based trading system. So this is very important, screen-based trading system, SBTs, where a member can punch into the computer the quantities of security and the price at which he would like to transact, and the transaction is executed as soon as a matching sale or buy order from a counterparty is found. So earlier it was an open outcry system, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए NSE ने इंट्रोड्यूस करा एक ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया गया. और इन्वेस्टर्स नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट सिस्टम दे कैन पुट देयर ऑर्डर ऑनलाइन, एंड जब भी उनको एक फिक्स प्राइस या फिर जो उनके मैचिंग प्राइस मिलता है उस पे वो ऑर्डर डील हो जाता है, मतलब ऑर्डर इज डन एट दैट प्राइस. सो NSE ने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा उसका नाम है नीट, NEAT, दैट इज कॉल्ड नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग. ऐसी अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसका है BOLT, बोल्ट, दैट इज BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम. So NSE का है NEAT. So NSE is the first exchange in the world to use satellite communication technology for trading. Its trading system is called National Exchange for Automated Trading. NEAT is a state-of-art client server-based application. Obviously, your client and server होता है उनका. So at the server end,
all trading information is stored in a memory database to achieve minimum response time. So पहले जैसे हमने डिस्कस करा ओपन आउटक्राई सिस्टम था विच वॉज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. नाउ जब से हमारे पास ट्रेडिंग सिस्टम आए हैं लाइक नीट, सो जो रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज वेरी लेस. आप ऑर्डर करते हैं और ऑल विद इन अ सेकेंड्स योर ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज द द टाइम ड्यूरेशन. सो अब इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है, विद इन अ सेकेंड योर ऑर्डर वुड गेट एग्जीक्यूटेड. अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज हाउ डज एन इन्वेस्टर लाइक अस, अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, सो हाउ वुड आई गेट एक्सेस टू दैट ट्रेडिंग फैसिलिटी. So how does an investor get access to internet based trading facility? So what happens, there are many brokers of NSE, many brokers of NSE के बहुत सारे ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर्स होते हैं who provide internet based trading facility to their clients. So I will go to any broker of NSE जो रजिस्टर्ड होगा सेबी पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और आई वुड गो टू दैट ब्रोकर एंड मैं उनसे एक डीमैट अकाउंट खोलूंगा उनके पास, एंड थ्रू दैट डीमैट अकाउंट आई वुड बी एबल टू डू trading online. So those brokers will provide me trading facilities. After opening the demat account, they will provide me trading facilities. अब इन brokers का ये need जो NSE का है, अगर they are member of NSE, so they can provide me need software or they can provide me their own software. So internet-based trading enables an investor to buy and sell securities through internet. So I just need to download that app on my system or on my mobile, and then with the help of internet, if I have internet connection, then I can do online trading. So investor need to get in touch with NSE broker. So I need to go to an NSE broker and get my demat account open. So now these are some of the brokers. जैसे इसमें आप देख सकते हैं Zerodha, that is one of the leading brokers in India. Brokerage houses, Zerodha Broking Limited. So I also have account with Zerodha. Then you have Karvi Stock Broking. Then you have Angel Broking. Then you have Motilal Oswal, Kotak Securities, ICI Securities, IIFL, Sher Khan. So these are some of the biggest brokers in India. SDFC Securities Limited. So now I will go to one of the broker and I will get a demat account open, and then these broker will provide me trading facility or trading software. So you can see this is my account, and I have, as I told you, I have a demat account with Zerodha, and Zerodha का ये one of the broker है, and they provide their own platform जिसको कहते हैं Kite इनके सॉफ्टवेयर का नाम है. So इसमें ये इनका डैशबोर्ड होता है. So this is my name and the holdings which I have, and these are the stocks. So Zerodha is the broker. मैंने इनके पास डीमैट अकाउंट खोला. So इन्होंने मेरे को लॉगिन डिटेल्स दी, and they have their own trading system. So own trading software जिसका नाम है Kite, KITE. So ऐसे ही आप ब्रोकर्स के पास जाते हैं and you get your डीमैट अकाउंट ओपन. देन जब डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है, उसके बाद नाउ यू हैव स्टार्टेड डीलिंग इन शेयर्स. इक्विटी में आपने स्टार्ट कर दिया. यू कैन बाय एनी शेयर ऑफ एनी कंपनी. उसके बाद आता है हर ब्रोकर को आपको जो भी आप ट्रेड करते हैं उसके कंफर्मेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर आपको इशू करता है. सो व्हाट इज एन कॉन्ट्रैक्ट नोट? Contract note is a confirmation of the trades done. So let's suppose after opening the demat account, मैंने आज particular shares, let's suppose मैंने इसमें आप देख सकते हैं, if I buy, let's suppose अंबुजा सीमेंट के मैंने कुछ शेयर्स लिए, टाटा मोटर्स के शेयर्स लिए. So at the end of the day, I would get a contract note which will give the confirmation of the trades done by me on that particular day. So at the end of the day, I would get the contract note from the broker. So what this contract notes do, it helps to settle dispute or claim between the investor and the trading member. If there is any dispute, so I need to have these contract note with me.
So these are the proof that I have done these trades on that particular day. A valid contract note should be in the prescribed form, contain the details of the trades, stamped with requisite value and duly signed by the authorized signatory. So ये सारी डिटेल्स उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में होनी चाहिए. क्या डिटेल्स होनी चाहिए? Broker has to issue a contract note and details should be name and address and SEBI registration number. You know, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर. सो जो भी ब्रोकर है, अगर जीरोदा है तो उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में. नेम ऑफ द पार्टनर इफ देयर इज एनी, ऑथराइज सिग्नेटरी का नेम होना चाहिए. उसके बाद उनका ऑफिस एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो मैंने ट्रेड करा है, फिर उसके बाद ऑर्डर नंबर, जो भी मैंने ऑर्डर टाइम, जो भी ऑर्डर करा था, जिस भी शेयर्स को मैंने बाय करा है, देन क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी, काइंड ऑफ सिक्योरिटी कौन सी है वो, ब्रोकरेज क्या चार्ज करी है, या फिर कोई टैक्स है, सर्विस टैक्स है, लेट सपोज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, लेट सपोज जीएसटी है, तो कहाँ उसकी डिटेल्स होनी चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए स्टॉक ब्रोकर का. सो अब हम देखते हैं जो लेट सपोज मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है जीरोदा से, तो मैं आपको दिखाता हूँ. जीरोदा से जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है उसमें जीरोदा, देयर एड्रेस, यू कैन सी सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये जीरोदा का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है. देन नेम ऑफ द कंप्लायंस ऑफिसर, डीलिंग ऑफिस एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट नंबर है, डेट 28 अगस्त 2020, दिस इज द डेट. सेटलमेंट नंबर क्या है मेरा, ये सेटलमेंट डेट, ये मेरी डिटेल्स है दिनेश रावत, माय एड्रेस एंड एवरीथिंग. एंड देन दीज आर द ट्रेड्स जो मैंने ट्रेड करे उस दिन, सिक्योरिटी, बाय सेल, एवरीथिंग. एंड देन you need to have all the details regarding the tax. So क्या कोई सेंट्रल जीएसटी लगा है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना लगा है, सो सारी डिटेल्स टैक्स से रिलेटेड. देन सिग्नेचर, सो ऑथराइज सिग्नेटरी, उनके साइन एंड द डिटेल्स ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर. So this is the contract note which you get from the stock broker after every day. जो भी आपने ट्रेड्स करे हैं उनकी डिटेल्स होती है कॉन्ट्रैक्ट नोट में. सो अब आपने प्राइमरी मार्केट पढ़ा, सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए यू नीड टू हैव डीमैट अकाउंट. किसी भी स्टॉक ब्रोकर पे आप जाएंगे, यू वुड गेट डीमैट अकाउंट, और फिर वो आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन होता है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. उसके बाद आप ट्रेड करते हैं, देन यू गेट कॉन्ट्रैक्ट नोट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ we'll discuss what precautions must one take before investing in stock market. So since it is known that stock market it is risky, so कुछ precautions हैं जो किसी भी investor को लेने चाहिए. That is, make sure your broker is registered with SEBI. So जिस भी ब्रोकर के पास आप जा रहे हैं, डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, make sure that broker is registered with SEBI and the exchanges. अब वो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एंड डू नॉट डील विद अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज. सो अनरजिस्टर्ड कोई भी ब्रोकर हो उसके साथ आपने डील नहीं करना है. इंश्योर दैट यू रिसीव कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंश्योर आपको एवरी डे कॉन्ट्रैक्ट नोट मिले, उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए. ऑल इन्वेस्टमेंट कैरी रिस्क ऑफ सम काइंड. Investors should always know that risk and that they are taking and invest in a manner that matches their risk tolerance. So it is always advisable that do not put your money in those securities which are risky. So always calculate your risk and then invest. Do not be misled by market rumors or any individual who pretends to be an analyst and gives you some tips, you can say. So do not get misled by such people. Take informed decision by studying the fundamentals of the company. So if anyone tells you that invest in this company, you need to first go and check the fundamentals of that company. That is very important. Now हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. तो पहला प्रोडक्ट होता है शेयर्स. आप शेयर्स में लगा सकते हैं, कंपनी के शेयर्स में. तो उसमें नॉर्मली कौन कौन से हमारे पास हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं. तो इक्विटी इज एन इक्विटी शेयर कॉमनली रिफर्ड टू एज ऑर्डिनरी शेयर्स, रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन अ बिजनेस वेंचर.
सो नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं जिसमें यू गेट दी ओनरशिप एंड एक पर्टिकुलर करंट मार्केट प्राइस पे वो ट्रेड होते हैं, यू कैन बाय दोज शेयर्स। देन यू हैव राइट इशू, जो हमने पढ़ा था प्राइमरी मार्केट में, उसके होते हैं राइट शेयर्स। सो राइट शेयर इज द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, वो मिलते हैं एट अ रेशियो टू दोज ऑलरेडी हेल्ड। सो किसी के पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो उनको राइट शेयर्स मिल सकते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो पे, जैसे 2/3 राइट्स इशू एट 125। इसका मतलब दो शेयर मिलेंगे जिसके पास ऑलरेडी 3 शेयर हैं एट द प्राइस 125 पर शेयर। सो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए होता है। फिर उसके बाद होता है बोनस शेयर्स। कभी कभी आपको कंपनी बोनस शेयर्स दे देती है अगर आप ऑलरेडी यू हैव सम शेयर्स। सो कम शेयर्स इशूड बाय कंपनीज टू देयर शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ये, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर्स ओन्स। सो दैट इज बोनस शेयर्स इनको कहते हैं हम। देन प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, दिस इज प्रेफरेंस बाय द नेम इटसेल्फ, आपको थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है उन शेयर्स में। सो ओनर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ फिक्स डिविडेंड, आपको मिलता है। इक्विटी शेयर्स में फिक्स डिविडेंड नहीं होता है, एंड और डिविडेंड कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट, या तो फिक्स डिविडेंड होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट, या फिर डिविडेंड कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट टू बी पेड रेगुलरली बिफोर डिविडेंड कैन बी पेड इन रिस्पेक्ट टू इक्विटी शेयर्स। So these are the 4 types of shares. फर्स्ट वॉज इक्विटी शेयर, देन यू हैव राइट्स शेयर जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होते हैं उनको मिलते हैं। बोनस शेयर्स ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं बट फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रेफरेंस दैट इज उसमें आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। देन यू हैव सेकंड प्रोडक्ट इज बॉन्ड। बॉन्ड मतलब आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। सो इट इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट एविडेंसिंग इंडेप्टनेस। इसमें क्या होता है, आप अगर गवर्नमेंट को कुछ सम ऑफ अमाउंट देते हैं, सो गवर्नमेंट बोरो करती है आपसे एंड गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि यस यू विल गेट द इंटरेस्ट रेट एंड द अमाउंट विच यू हैव गिवन एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। सो ये आपकी बॉन्ड है नॉर्मल। सो बॉन्ड इन्वेस्टर लेंड्स मनी टू द इशूअर, इशूअर जनरली इज योर गवर्नमेंट, and in exchange the issuer, the government promises to repay the loan amount on a specified maturity date. वो 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। So the issuer usually pays the bond holder periodic interest payment भी होता है इसमें over the life of the loan. So type of bonds जो होते हैं, एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड, नाम से ही है, कूपन होता है इंटरेस्ट, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जनरली डिस्काउंट भी आपको मिलते हैं। सो डेफिनेशन हम देखें तो बॉन्ड इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रीपेड एट अ फेस वैल्यू, जो उसकी फेस वैल्यू होगी वो आपको मेच्योरिटी पे मिलेगी। नो पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड, जीरो कूपन, कूपन मीन्स इंटरेस्ट, सो नो पीरियोडिक इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट द रिटर्न टू द होल्डर। इशू प्राइस जो होता है, जैसे आपको डेफिनेशन है, ये बहुत डिस्काउंट पे आपको मिलता है। सो डिस्काउंट पे मिलेगा, अगर 100 का है आपको मिलेगा लेट्स सपोज 60 में। सो 60 में अभी आपको मिलेगा और बाद में जब इसकी मेच्योरिटी आएगी तो आपको 100 रुपीज मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल। देन द बायर ऑफ दीज बॉन्ड रिसीव ओनली वन पेमेंट दैट इज एट द मेच्योरिटी। कन्वर्टेबल बॉन्ड जिसको आप कन्वर्ट से कर सकते हैं इक्विटी में। सो अ बॉन्ड गिविंग द इन्वेस्टर द ऑप्शन टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ फिक्स कन्वर्जन प्राइस। ट्रेजरी बिल्स जैसे हमने पढ़ा था मनी मार्केट में। सो ट्रेजरी बिल आपको पता है शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है, जनरली इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 ईयर के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म इज अप टू 1 ईयर, बेयर डिस्काउंट सिक्योरिटी, डिस्काउंट पे ये इशू होता है, इशूड बाय गवर्नमेंट एज अ मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग देयर कैश रिक्वायरमेंट। कुछ टर्म्स होते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, पहला होता है मेच्योरिटी। So maturity of a bond refers to the date on which the bond matures. So अगर maturity 1 साल बाद है तो इसका मतलब जो फाइनल उसकी डेट होगी जब वो बॉन्ड मेच्योर कर जाएगा तो उसे हम कहते हैं मेच्योरिटी। कितनी मेच्योरिटी है उस बॉन्ड की। सो उसके बाद टर्म टू मेच्योरिटी refers to the number of years remaining for the bond to mature. So let's suppose आपने बॉन्ड लिया था एंड अभी 6 मंथ उसमें रह गए तो उसको हम कहते हैं टर्म्स टू मेच्योरिटी इज 6 मंथ, द नंबर ऑफ इयर्स रिमेनिंग। कूपन इज द इंटरेस्ट, सो इट refers to the periodic interest payment that are made by the borrower which is also the issuer to the lender.
सो अगर हमने कोई बॉन्ड लिया है और उसमें अगर कूपन लिखा हुआ है 8%, सो कूपन रेट इट इज 8%, तो 8% ऑफ 100 या 1000 वो हमें इंटरेस्ट मिलता है. सो कूपन इज द इंटरेस्ट विच यू गेट व्हेन यू इशू अ बॉन्ड. सो कूपन रेट इज द रेट एंड कूपन इज द इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज जो आपको मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल. सो लेट सपोज अगर आपको कोई बॉन्ड का कोटेशन दे रखा है, तो लेट सपोज GSCG 2008 11.40%. तो इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करी है, 2008 इसकी मेच्योरिटी है और कूपन रेट 11.40%. So bond refers to central government bond maturing in 2008 and paying a coupon means interest at the coupon rate is 11.40. This is how you read the bond. फिर एक हमारे पास जब भी हम ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, तो आप देखेंगे बिड एंड आस्क प्राइस आता है. सो जब भी हम देखते हैं कोई भी ट्रेड कर रहे होंगे, तो यू वुड गेट बिड एंड आस्क. सो बिड बाय साइड, जो जनरल पब्लिक बाय कर रही है उस शेयर को, तो उसके प्राइसेस आते हैं. और आस्क इज सेल साइड, जनरल पब्लिक जब सेल करती है शेयर को, तो उस साइड ये आता है. सो डेफिनेशन देखें, द बिड इज द बायर प्राइस, जनरल पब्लिक वांट्स टू बाय एट दैट प्राइस, उस शेयर्स को बाय करना चाहती है जनरल पब्लिक. सो इट इज द प्राइस दैट यू नीड टू नो व्हेन यू हैव टू सेल. सो जनरल पब्लिक इस प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना चाहती है उस शेयर को. सो अगर आप सेल करेंगे तो आपको देखना होता है बिड प्राइस क्या है. तो ऑब्वियसली आप सेल करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम प्राइस में सेल करना चाहेंगे. सो सबसे ऊपर जो होता है वो मैक्सिमम प्राइस आता है कि जनरल पब्लिक इस प्राइस पे सेल करना चाहती है. एंड देन वी हैव आस्क प्राइस. सो इट इज व्हेन नीड टू नो व्हेन यू आर बाइंग. तो जनरल पब्लिक इज सेलिंग, सो यू वांट टू बाय. अब आप बाय करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम प्राइस होना चाहिए. सो जब भी आप देखेंगे सेल साइड, तो वहां पर सबसे मिनिमम जो होता है वो ऊपर आता है, और जब भी आप बाय साइड देखते हैं तो सबसे मैक्सिमम जो होता है वो ऊपर आता है. सो दिस इज as you can see here on the left hand side, after the bid quantity price, so where on the right hand side is the ask quantity. So this is your bid quantity left hand side में, and right hand side में ask quantity. So the best buy is the order with the highest price. Bid जब भी आप देखेंगे highest price, इस पे आप sell करेंगे अगर if you want to sell your share, and अगर आप buy कर रहे हैं, so then you would buy at this price. And these are some important terms. जैसे हमने कहा था स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं जो भी हम सिक्योरिटीज में डील करते हैं उस प्रोसेस को. एंड स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं दैट आर रेगुलेटेड बाय सेबी. सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो दो एक्सचेंज है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. BSE में सब्सिडरी है CCIL, ये हमने पढ़ा था आपका प्राइमरी मार्केट में. सो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी है CDSL, जो डिपॉजिटरी है जिसमें सारे डीमैट अकाउंट जो होते हैं उनकी डिटेल्स होती हैं. सो ब्रोकरेज हाउस, जो भी ब्रोकर्स होते हैं जैसे जीरोधा, सो वो डिपॉजिटरी जो होती हैं उनके पास भी रजिस्टर्ड होते हैं. सो जीरोधा रजिस्टर्ड है CDSL के पास. वैसे ही अगर हम ICICI सिक्योरिटीज की बात करें, जो एक ब्रोकर है, सो दैट इज रजिस्टर्ड विद बोथ. इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड विद CDSL एंड इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड विद NSDL. NSDL क्या है? NSE की सब्सिडरी है, दैट इज नेशनल NSE क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एंड उसकी सब्सिडरी है NSDL, दैट इज डिपॉजिटरी. ये BSE का डिपॉजिटरी है, ये NSE का डिपॉजिटरी है. इसके पास रजिस्टर्ड है ICICI सिक्योरिटीज, जीरोधा इज रजिस्टर्ड विद CDSL. एंड जो हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, NSE का हमने देखा नीट, दैट इज द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एंड BSE का है बोल्ट प्लस, एंड नीट नाउ इज नीट ऑन वेब. सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाउ, नीट ऑन वेब. सो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा सेकेंडरी मार्केट, सो डेफिनेशंस, एंड उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, शेयर्स एंड
आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एंड डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंड देन स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर रोल. So that is all for today. Thank you so much.